کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور کارنامہ۔ پنجاب میں پاکستان کی پہلی مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مصنوعی بارش کا تجربہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کیا گیا ہے۔ مصنوعی بارش یو اے ای کے اشتراک سے کی گئی۔ مصنوعی بارش پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ بتانا تھا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی بارش سے ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا۔ جنوبی پنجاب سمیت جہاں بھی ضرورت ہوئی مصنوعی بارش برسائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا ہے۔ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مصنوعی بارش کا تجربہ لاہور میں کیا گیا ہے۔ مصنوعی بارش یو اے ای کے اشتراک سے کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اس موقع پر بتانا تھا کہ مصنوعی بارش پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ مصنوعی بارش سے ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا، جبکہ جنوبی پنجاب سمیت جہاں بھی ضرورت ہوگی مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ حکومت نے پیٹرول 14 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 50 پیسے سستا کر دیا۔ شہریوں نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ عوام کو بڑا ریلیف مل گیا۔ حکومت نے پیٹرول 14 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 13.5 روپے سستا کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اچھا اقدام ہے، مگر مزید ریلیف ملنا چاہیے۔ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ پیٹرول نہیں، آٹا، گھی، چینی اور دالوں کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جائے۔ اچھا قدم ہے ان کا، انہوں نے پیٹرول کم کیا ہے۔ جس سپیڈ سے اوپر گیا ہے اس سپیڈ سے کم تو نہیں ہو رہا، لیکن اچھی بات ہے، یہ کم کر رہے ہیں۔ اور جو ضرورت ہے زندگی کی اشیاء ہیں اس میں ان کو کم کرنا چاہیے۔ مزدور طبقہ ہے وہ سب پریشان حال ہیں، جیسے گھی، چینی، آٹا۔ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ پیٹرول کی کمی ریٹس میں کمی کی گئی ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ غریب تک پہنچے، اور وہ اس صورت میں ہے جب اس کی بیسک نیڈز جو ہیں اس کی پرائسز کو کم کیا جائے گا، گھی، چینی، آٹا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے بڑا ریلیف دیا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ بہت اچھا ریلیف دیا حکومت نے، اور ہمیں بڑی کبھی امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو نئی حکومت آئے گی وہ اس سے بھی زیادہ ریلیف دے گی اور مہنگائی کو کنٹرول کرے گی۔ اس سے بڑا اثر پڑے گا کاروبار پر بھی، معاشیات پر بھی، اور پاکستان کی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ غریب آدمی کے لیے سوچے جو پیٹرول کے لیے سستا کرے، دوسری چیزیں بھی نوٹس لیا جائے تاکہ ہر چیز میں ریلیف ملے۔ عوام نے حکومت سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ رحیم یار خان، بہاولپور، مظفر گڑھ اور خیرپور ٹامی والی کے شہری خوش ہیں۔ حکومتی اقدام کو خوب سراہا، کہا آہستہ آہستہ معاشی حالات سنبھل رہے ہیں، انشاءاللہ جلد سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ نگران حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ پیٹرول 14 روپے جبکہ ڈیزل 13.5 روپے سستا کر دیا۔ رحیم یار خان کے شہریوں نے حکومتی اقدام کو سراہا، کہا پیٹرول سستا ہونے سے دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی۔ بہاولپور کے شہری پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے پر خوشی سے نہال، کہا آہستہ آہستہ معاشی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ملک میں سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ مظفر گڑھ کے شہری بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوش، کہتے ہیں حکومتی اقدامات کے بعد ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں فوری اور نمایاں کمی کرنی چاہیے۔ خیرپور ٹامے والی کے شہری بھی پیٹرول 14 روپے اور ڈیزل 13.5 روپے سستا ہونے پر خوش ہیں، کہتے ہیں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات سستی کر کے عوام کے دل جیت لیے، حکومتی اقدام کو خوب سراہتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر خبیبر خوش ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت نے بہت اچھا اقدام اٹھایا، اب مہنگائی میں فرق پڑے گا، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ حاشر اشفاق رپورٹ کریں گے۔ غازی خان کے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر کافی مطمئن دکھائی دیے اور مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی میں کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ اور چیزوں میں ساری مہنگائی کرتے ہیں، کبھی کوئی ڈیزل مہنگا ہو جائے، کوئی آئل مہنگا ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو ویسے ہی مہنگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول تو سستا ہو گیا مگر کھانے پینے کی چیزیں کون سستی کروائے گا۔ جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے اسی طرح دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ شہریوں نے آنے والے دنوں میں پیٹرول مزید سستا ہونے کی امید لگا لی، کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف ضرور دے گی۔ کیمرامین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان کارپوریشن آفس میں توڑ پھوڑ کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ 19ویں اسکیل کی سیٹ پر 18ویں اسکیل کا افسر لگانے اور توڑ پھوڑ کا پرچہ نہ کاٹنے پر ملازمین نے 5ویں روز بھی احتجاج کیا۔ سلمان ضمیر کی رپورٹ۔
कॉरपोरेशन की 19वीं ग्रेड की सीट पर 18वें ग्रेड के ऑफिसर को लगाने और दफ्तर में तोड़ फोड़ करने का मामला तूल पकड़ गया। एपका यूनियन के जेर एहतमाम कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने 5वें रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सीट पर 19 ग्रेड के अफसर को बहाल किया जाए, राना महबूब की गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इंतहाई अफसोस के साथ कहते हैं कि हमारे जो मामलात मुलाजमीन के होते हैं वो सीनियरिटी के तहत चलते हैं। सीनियरिटी के तहत जो उम्र रसीदा बंदा होता है, यानी जिसकी सर्विस ज्यादा होती है, उसको अगले स्केल में प्रमोट किया जाता है। यहाँ जुल्म की दास्तां मुरतब की गई कि जो स्केल 19 का था उसको हटा के 18 स्केल को 19 में बिठा दिया गया। मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो उन पे जबर और तशद्दुद किया गया, उनके हकूक सलब करने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मैनेजिंग ऑफिसर की 19वें ग्रेड की सीट डाउन ग्रेड ऑफिसर के हवाले करना दुरुस्त नहीं। मैं कहता हूं कि जो गुंडा नासिर आए थे राना महबूब आलम के साथ, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए फौरी तौर के ऊपर। और जो तंजीमें पाकिस्तान की हमारा साथ दे रही हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साथ दे रही हैं, जमीन मदीना औलिया मुल्तान का साथ दे रही हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के नोटिस के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में 18 करोड़ रुपए की डकैती का मामला, ताजिर बिरादरी का सिटी पुल पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि पुलिस चोरों और डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो गई। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात सामने आ गई। स्कूल बाजार से 6 डाकुओं ने दिन दिहाड़े सोने के ताजरों से 18 करोड़ से जायद मालियत का सोना लूट लिया। मुलजमान ने मुजाहमत पर 2 ताजरों को जख्मी भी किया। रेस्क्यूअर्स ने जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताजिर बरादरी ने पुलिस के खिलाफ सिटी पुल पर एहतजाज किया और दुकानें भी बंद की। ताजिर बरादरी के रहनुमाओं का कहना था कि डकैती की वारदातों में इजाफा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये दिन दिहाड़े जो है वो एक ताजर जो है, जो हमारे मुल्तान के भाई थे, उनसे जो है वो छीना झपटी की, उन्होंने डकैती की और उन्हें जो है वो टांगों पे जो है वो गोलियां मार के शदीद जख्मी कर दिया। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये जो है डकैती जो है वारदात जो है वो जो है रहीम यार खान की जो सिक्योरिटी के ऊपर जो है एक सवालिया निशान है। हमारे जब तक ताजर को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से करेंगे और हमारी गवर्नमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने वाली फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए और मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए पकड़कर। आज हमारे ताजर के साथ, ज्वेलर के साथ ये वारदात आई है और यहाँ पे एक भी पुलिस का कोई आला ओहदेदार हमारे पास नहीं आया। सरेआम शहर के सेंटर में थाना A डिवीजन की हदूद में सरेआम फायरिंग की गई और कलाशनकोव के ब्रश चलाए गए हैं। मुजाहिरीन ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। ताजिरों का कहना था कि इंसाफ न मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रहीम यार खान में होने वाली डकैती के खिलाफ मुल्तान के ताजिर सड़कों पर आ गए। वाइस चेयरमैन सराफा बाजार की क़यादत में पाक गेट चौक पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने 24 घंटों में मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रहीम यार खान में 6 डाकुओं ने सोने के ताजरों से 20 करोड़ का सोना लूट लिया। फराज रमजान की रिपोर्ट देखिए। ताजरान सराफा बाजार ने वाइस चेयरमैन सराफा एसोसिएशन शेख खुरम शहजाद की क़यादत में पाक चौक गेट पर एहतजाज किया। इस मौके पर सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर भी मौजूद थे। वाइस चेयरमैन सराफा एसोसिएशन का कहना था कि रहीम यार खान में 2 ताजरों से 20 करोड़ का सोना लूटा गया। इन्होंने कहा कि अगर 24 घंटों में मुल्जिमान ना पकड़े गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। असल से इंतजामिया को बावर कराना चाहता हूँ कि आज सुबह जो हमारे ताजरों को जो सोनार का काम करते थे उनको जो गोलियां लगी हैं, अभी वो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक हालत में है। उनका तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ऊपर का सोना जो है वो डाकू ले गए हैं और उनको जख्मी कर फेंक गए हैं। ये जो डाकू गर्दी है, हम इसके खिलाफ एहतजाज दायरा वसी कर रहे हैं। सदर लोहा मार्केट शाहिद शकूर का कहना था कि इंतजामिया होश के नाखून ले, अगर अजाला ना किया गया तो लोहा मार्केट बंद कर देंगे। खुदारा इंतजामिया होश के नाखून ले, हमें ताजिरों को अलग अलग न समझें। जहां हमारे ताजिर काज की बात आएगी, ताजिरों के मुफादात की बात आएगी, हम अपने ताजिरों के साथ खड़े हैं। आज ये एहतजाज सराफा बाजार का है, लेकिन अगर हमारे साथ ज्यादतियों का अजाला न किया गया तो एहतजाज का दायरा हम वसी कर देंगे। साबिक सदर सराफा एसोसिएशन सैयद इरफान शाह ने कहा कि इंतजामिया ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। मुल्जिमान को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। हमारे एक मासूम ताजर के साथ जो अंधोनाक वाक़या हुआ है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
और पुलिस इंतज़ामिया बुरी तरह नाकाम हो चुकी है ताजर को तहफ़्फ़ुज़ देने में। ये आए दिन डकैतियों का, चोरगर्दी का सिलसिला खुदा र ख़त्म किया जाए। इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि ये ताहाल ज़िंदगी याद रखें। मुजाहिरीन ने 24 घंटों में डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहाब अली के साथ फराद रमजान, रोही, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हैमलेट ड्रामा का तकरीब का इनेकाद। तकरीब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के ज़ेरे एहतमाम सजाई गई। निसाब के साथ तलबा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश रहे। शकील सुल्तान की रिपोर्ट। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हैमलेट ड्रामा तकरीब सजाई गई। तलबा ने शेक्सपियर का मारूफ ड्रामा हैमलेट पेश किया। जासूसी और इंतकामी कैफियत में तलबा की अदाकारी ने शुरका को हैरान कर दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का कहना था कि बच्चों ने खूब मेहनत की है। तलबा तख्लीकी सलाहियतों को बरोएकार लाकर सोशल मीडिया पर अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ये बच्चों की एक तो पढ़ाई का हिस्सा है और दूसरा उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि वो अच्छे इंसान बनेंगे। फिर तीसरा जो उनके अंदर टैलेंट है वो इमोशन के डिस्प्ले का, और चौथा जो हमारा आजकल का सोशल मीडिया का दौर है उसमें मैं समझता हूँ कि बच्चों को इन क्रिएटिव एक्टिविटी में एंगेज करके एक बहुत ही अच्छे ग्रेजुएट्स और बहुत अच्छे शहरी बनाए। तलबा ने हैमलेट में अपने किरदार के मुतालिक बताते हुए कहा कि हमें यहाँ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिला, जिसका एजाज हमारे असातिज़ा को जाता है। स्टूडेंट्स की जो एक्टिंग का लेवल है, प्रोडक्शन का लेवल है और क्रिएटिविटी का खास तौर पे लेवल है, ये एक इंटरनेशनल लेवल तक थोड़ी सी प्रैक्टिस के चंद सालों की प्रैक्टिस से इंटरनेशनल लेवल पर अब ये पहुँच चुके हैं कि ये कम्पीट कर सकें। मैंने इस ड्रामे में हैमलेट जो कि मरकज़ी किरदार है उसका रोल अदा किया और उसके बहुत सारी अंदरूनी कैफियत हैं, नफ्सियात और उसके जो दायरा कार है सोच का, उसको स्टेज पे लाने की कोशिश की। मेरा एक रोल ओफिलिया का था और ओफिलिया मोस्ट ओबीडियंट डॉटर भी होती है, एक सिस्टर भी होती है और उसको अपने डैड को और हर किसी को बहुत फॉलो करना होता है। प्रोफेसर अली सुखनवर, डॉक्टर राहत बानो, मोहम्मद अली काकड़, डॉक्टर नवीद अहमद, प्रोफेसर मुजफ्फर कादिर भट्टी और दीगर असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। टेफ्टा बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा जॉब फेयर तकरीब सजाई गई। बहावलपुर और लोधना से पास शुदा 800 से ज़ायद तालिबात ने शिरकत की। 45 से ज़ायद सनतों ने मुख्तलिफ शोबों में एम्प्लॉयमेंट स्टॉल्स लगाए। ताहिर जोया की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के शहरों में जॉब्स मार्केट फरोग पाने लगी। टेफ्टा के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर में एक रोज़ा फीमेल जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। बहावलपुर और लोधरा से 800 से ज़ायद पासशुदा तालिबात की शिरकत। 45 से ज्यादा सनतों ने मुख्तलिफ शोबों में एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टॉल सजाए। मोर देन 42 एम्प्लॉयर्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी इस जॉब फेयर के हवाले से हमने कोशिश की है कि हमारे जो पास आउट हैं, एलुमनाई हैं, उनको और अल्टीमेट जो उनका मार्केट है एम्प्लॉयर, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया है और जो जॉब सीकर था उसने अपनी जो इंडस्ट्री थी उससे कांटेक्ट किया है, क्योंकि हम टेफ्टा के इदारों में मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहे हैं फीमेल के ना, तो उन कोर्सेज के हवाले से इंडस्ट्रीज को हमने इनवाइट किया। तालिबात का कहना था कि हर इदारे में जॉब फेयर तकारीब होनी चाहिए। पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात को एक छत तले नौकरियों के मुख्तलिफ मौक़े फराहम करना खुशाइंद इक़दाम है। जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, जो सोर्स इन्होंने ईजी वे में बना दिया है और हमें बहुत मतलब कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत ही बेस्ट रहा है हमारे लिए। हमारा जो इलाका जहाँ पे आता है ना, बहुत काफ़ी गर्ल्स निकलती नहीं है काम करने के लिए, तो ये है कि यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है और काफ़ी सारी गर्ल्स ने अपनी सीवीज जमा करवाई हैं और बाकायदा खुद आके विजिट किया है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पे विजिट करें और हर चीज़ अपने लिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम का खुद कर सकें। जॉब फेयर के इख्तिताम पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दरमियान एजाजी शील्ड्स तकसीम की गईं। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। लैया में डॉक्टर स्कूल एंड साइंस एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम ऑल पंजाब हुस्न नात और तकरीरी मुकाबला रावलपिंडी, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ अजला के तलबा ने शिरकत की। जाहिद सरफराज रिपोर्ट करेंगे।
ڈاکٹر اسکول اینڈ سائنس اکیڈمی کے زیر اہتمام آل پنجاب حسن نعت اور تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ راولپنڈی، شیخو پورہ سمیت مختلف اضلاع کے طلباء نے شرکت کی۔ میں اور معاشرہ کے موضوع پر طلباء نے خوبصورت تقریریں پیش کی۔ پرنسپل ایگریکلچر کالج یونیورسٹی آف لیا پروفیسر ڈاکٹر امبرین شہزاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ مقابلے کے انعقاد سے طلباء کی صلاحیتوں میں نکھار آیا۔ چیئرمین اسکول ڈاکٹر شاہجہان واندر کا کہنا تھا کہ مقابلے کا مقصد طلباء کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر طلباء کو سرٹیفکیٹس، شیلڈز اور انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔